Hello members, this is Aman from Upmost Stocks. We hope that you are doing well. So we saw another day of selling in Nifty 50 and as of now it looks a little weak, but let us see how it works tomorrow. So today we will be covering a stock named as Triveni Engineering. Why we are covering this stock is because it has given a breakout of a flag pattern today, even though it had given a breakout of this flag pattern on 17th of January 2022 as well. That is day before yesterday. However, because of yesterday's sharp selling, it came back inside this flag yesterday only. So, but today it has given a very sharp breakout. You can see the size of the candle and the volume is decent, though it is not quite high, but the candle is very strong. You can see it has moved up by 13 rupees today itself. That is around 5% during the day, even when there was sharp selling in the market. So there can be a possible upside in this stock in next few days. So we will try to identify as to where this stock can go in next few days or maybe weeks. So we will be discussing the flag pattern today that we have already discussed in a lot of our previous videos. So we will be rediscussing that today because we will be using this pattern to identify the possible targets in Triveni Engineering. So the possible targets based on the flag pattern is coming around to be 291 rupees. So Triveni Engineering has closed today at a price of 269 rupees and 40 paisa. So we can see another movement by maybe 20-21 rupees within next few days. However, it is possible that since it has given a breakout of this pattern, it needs to stay above this particular line, that is the upper band of the flag, for 2 to 3 days to confirm the pattern. As of now, it has given a breakout on 17th of January, but that breakout failed because it entered the flag yesterday only. Not today. Again, it has given a breakout. So we need Triveni Engineering to stay above this line for a day or two before we can see this level of rupees 299, 291 in this particular stock. So how we have calculated the price? You just need to identify the length of the pole. This is the length of the pole. So the pole's upper value is coming around to be 252.45 and pole's lower value is coming around to be 221.15. Everything is you just need to draw this pole and you will be able to identify the upper value and the lower value. So the difference between these two values is coming around to be 31 points, or you can say 31 rupees. So what you need to do now, you just need to add this value of 31 rupees to the breakout price. So the breakout price is coming around to be 260. We have drawn this red line. You can see the breakout has occurred at this level. So we have taken it as 260 rupees. So 260 plus 31 is equal to 291 rupees. So there is a possibility that we might see Triveni Engineering touching a level of 291 in the immediate short term. Maybe it can take up to 2 to 3 days or maybe a week or so, because Nifty is a little weak as of now. The market is a little weak, but despite of its weakness, Triveni Engineering has moved up very sharply today and has also closed above the critical level of the breakout price of 260. So it has also, you can see this candle is called a bullish engulfing candle, which means that it has completely eaten the previous day's bearish candle, which is again a positive, which again is a positive indicator. So if the previous day's bearish candle is completely covered by the current day's candle, you can say that there is a possibility that the stock might show further strength in the coming days. So we will have to see as to whether Triveni Engineering can touch 291 in next few days or not. There is also a possibility that it might test this level before moving up again. So that we will have to see as to whether it touches rupees 260 before going up or directly touches 291 in the next few days. So we will again revise the methodology. It is very simple. You just need to identify the length of the pole. So the upper value is coming around to be 252.45 and the lower value is coming around to be 221.15. The difference is around 31 rupees. You just need to add that value to the breakout price of 260 rupees. And when you will add that this value of 31 to 260 rupees, you will get a possible target of 291 rupees in Triveni Engineering in the next few days. So we hope that this information is useful to you. We are trying to explain things in a very simple manner to you so that you can make your basics very strong and then you can go into complexities
but this is how technical analysis works. So in this particular video, we have tried to explain you two technical concepts. One is the flag pattern and the other one is the bullish engulfing candlestick pattern. This is the bullish engulfing candle because it has completely eaten the or covered the previous day's candle. So it has completely negated the previous day's bearish movement. So let us see how it goes tomorrow. If it touches a higher price tomorrow, maybe 290, 291, so we will update you tomorrow itself. Otherwise, we will wait for the price of 291 to come before updating you. So in case you have any queries, concerns or suggestions, you can post them in the comment section and we will reply to them ASAP. So with this, I will be ending this video in English. तो मैं इस वीडियो को हिंदी में शुरू कर रहा हूँ. तो हेलो मेंबर्स, मैं अमन बोल रहा हूँ अपमूव स्टॉक से. तो हम लोगों ने कल कोई स्टॉक डिस्कस नहीं किया था, बट आज हम लोग एक स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं. इसका नाम त्रिवेणी इंजीनियरिंग है. तो इस स्टॉक को हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इस स्टॉक को डिस्कस करने के दो कारण हैं. एक तो इसमें दो टेक्निकल पैटर्न्स बने हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे. दूसरा, ये स्टॉक आज भी स्ट्रॉन्ग था जबकि मार्केट इतनी बुरी तरह गिरी हुई थी. मतलब स्टॉक ने आज भी गिरी हुई मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई है. तो फिर हमने सोचा कि स्टॉक आपके साथ डिस्कस करते हैं और इसके बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक आने वाले दिनों में कहाँ जा सकता है. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं. एक तो फ्लैग पैटर्न जो हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल. तो पहले हम फ्लैग पैटर्न के थ्रू ये निकालने की कोशिश करते हैं कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग कहाँ तक जा सकता है. हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में फ्लैग पैटर्न को एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट इस स्टॉक ने 17 जनवरी को भी दिया था, पर ये वहां रुक नहीं पाया और कल गिरकर फिर वापस इस फ्लैग के अंदर आ गया था. बट आज स्टॉक ने इस फ्लैग की अपर लाइन का ब्रेकआउट भी दे दिया. मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि फ्लैग का ब्रेकआउट दे दिया और बहुत स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है क्योंकि इसकी जो बॉडी है कैंडल की वो बहुत स्ट्रांग है. वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, अभी तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट हो सकता है कि स्टॉक के लिए इतनी वॉल्यूम सफिशिएंट हो क्योंकि आप देख सकते हैं एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा ही वॉल्यूम इसका आज है. बट कैंडल अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. तो अब हम इसका पॉसिबल टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे. आपको कुछ नहीं करना है, आपको पोल की अपर वैल्यू लेनी है, लोअर वैल्यू लेनी है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है. जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको आपको ब्रेकआउट प्राइस में ऐड कर देना है. तो जो पोल की ऊपर की वैल्यू है वो है 252.45 हमने यहाँ पर लिख दिया है और जो लोअर वैल्यू है वो आपकी है 221.15. तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 31 पॉइंट्स या फिर 31 रुपीज आप उसको बोल सकते हैं. और जो ब्रेकआउट प्राइस आप देख रहे हैं कि नीली लाइन को इस कैंडल ने लगभग यहाँ पर कहीं पर तोड़ा है. तो ये प्राइस 260 की आ रही है. ब्रेकआउट प्राइस आप 260 ले सकते हैं. तो पॉसिबल टारगेट क्या निकल कर आएगा? 260 प्लस लेंथ ऑफ द पोल. तो 290 से 291 रुपए का टारगेट त्रिवेणी इंजीनियरिंग में निकल कर आ रहा है नेक्स्ट फ्यू डेज में या 2 से 3 हफ्तों में, प्रोवाइडेड मार्केट थोड़ी सी सपोर्ट करे. जैसे खैर इस स्टॉक ने आज मार्केट के अगेंस्ट मूव किया है तो हो सकता है कल भी ऐसा ही मूव दे और हो सकता है कि कल ही एक डिसेंट लेवल को टच भी कर जाए. हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारे वीडियोस के बेसिस पर कोई ट्रेड ना लें क्योंकि ये स्टॉक एक बहुत हाई लेवल पे ऑपरेट कर रहा है. तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैप भी हो. आप देख सकते हैं कि अपने लाइफ टाइम हाई पर है अभी. यस इट इज, ये अपने स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर है. तो ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है क्योंकि जब स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे होता है 52 वीक पे हाई होता है, 52 वीक हाई पे होता है, तो थोड़ी बहुत सेलिंग उसमें ऊपर आ सकती है. तो ये कई बार ऑपरेटर्स ट्रैप करने के लिए भी करते हैं. इसलिए इस स्टॉक का इस लाइन के ऊपर रहना बहुत जरूरी है. कम से कम भी 2-3 क्लोजिंग यहाँ पर आना जरूरी है क्योंकि फिर ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करना शुरू कर देगा. आप देख सकते हैं 17 जनवरी को ये गया था, 18 जनवरी को फिर वापस अंदर आ गया, आज फिर इसने ऊपर किया है. तो हमें वेट करना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे. अगर ये कल ही 290 291 के लेवल को टच कर देता है तो हम आपको स्टॉक के बारे में कल ही अपडेट कर देंगे, या अगर ये कोई भी अपसाइड मूवमेंट दिखाता है तो कल ही हम आपको इसके बारे में अपडेट कर देंगे. तो ये तो फ्लैग पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. दूसरा जो पैटर्न हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न. तो आप देख सकते हैं कि जो ये कैंडल है, इस कैंडल ने पिछले दिन के पूरे बियरिश कैंडल को कवर कर लिया है. तो इसने पूरी की पूरी तरह से इस कैंडल को एंगल्फ कर लिया है. इसको ऐसा ही बोला जाता है कि आज की कैंडल ने पिछले दिन की कैंडल को पूरा खा लिया. इससे क्या पता चलता है कि जो बियरिश मूवमेंट इसमें आई थी कल वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है. आज बुल्स ने बाजी मार ली है और वो कल की जो बियरिश मूवमेंट थी उसको उन्होंने पूरा धकेल दिया है, मतलब खत्म कर दिया, पूरी तरह से कवर कर लिया उसको और कवर करके उसके ऊपर ही बंद किया. आप देख सकते हैं पूरी बॉडी भी कवर कर रही है कैंडल और इवन विक्स को भी कवर कर रही है.
तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये जनरली एक पॉजिटिव साइन होता है स्टॉक्स के केस में, कि मतलब स्टॉक्स के इंडेक्स के केस में ये दिखाता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है और बुल्स कहीं ना कहीं अभी बियर्स पर भारी पड़ रहे हैं। इससे हम कोई प्राइस टारगेट अभी नहीं निकाल रहे हैं और मेरे ख्याल से रेलिवेंट भी नहीं होगा, क्योंकि हमने फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे ऑलरेडी 291 का टारगेट निकाल लिया है। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है एक तरह का, कि अब हो सकता है कि बुल्स इस स्टॉक में डोमिनेट करें अगेंस्ट बियर्स। तो ये आपका बुलिश एंगल्फिंग भी हमने इसमें कवर कर दिया, थोड़ा सा सबको समझा दिया। और फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे जो इसका टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 291 रुपीज, 291 रुपीज। तो इससे पहले मैं वीडियो एंड करूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और कंसल्टेंट को लूप में रखिए इन दिनों, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करेगी जब तक ये बजट क्लियर नहीं होता है। तो वो आपको स्टॉप लॉसेस रिवाइज करने में हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कब एग्जिट करना है, कब दोबारा एंटर करना है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए और हमारे वीडियोस को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज कीजिए। अगर आप इनके थ्रू अपने आप को एजुकेट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप भी अपने स्टॉक्स को खुद एनालाइज कर पाएंगे और शायद बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। सो दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।